Hello Gitika. Hello ma'am. How are you? I'm good. How are you? I'm good. I'm Suhani Sharma. First, I will tell you that I am as an alumni relation manager in Medicaps Alumni Association. Now, first, as I have introduced myself, I want that you introduce yourself to all. Okay. Hello, I am Gitika Jain. I'm from Indore only. I've done my schooling from Indore, and after that I prepared for MBA from here only. I was a studious one, so I prepared for bachelor's, and then during bachelor's I prepared for CAT examination. Okay. Because doing MBA was one of my biggest dream. Okay. So for that I went for this, but just like every other youngster, I was very confused. So I was good in curriculum activities also. So I the BHM, like a bachelor degree in hotel management. Oh. So my father actually wanted me to do MBA first. Like he was like, you are not that much good enough, or you don't have that much knowledge to enter into the actual world. So like I had a huge fight with him just because I wanted to do BHM. And I'm the only girl child in my house. Like I was 7 brothers. So they were like, अभी नहीं भेजते हैं बाहर, अभी छोटे हो ऐसा. Right. तो उनका ऐसा था कि थोड़ा सा और प्रिपेयर कर लो. तो कैट के बाद आई लाइक प्रिपेयर्ड फॉर CT ऑल्सो. Okay. सो नॉर्मल मेरे मार्क्स थे, दो आई वॉज अ स्टूडियस वन, बट बिकॉज मेरा इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था तो मैं इतना फोकस नहीं कर पाई. हाँ, लाइक जहाँ मेरे अच्छे आ सकते थे बट वहाँ वो नॉर्मली था. तो देन आई जस्ट वेंट फॉर MBA लाइक डूइंग इन इंदौर ओनली. देन आई फाउंड दिस कॉलेज मेडिकैप्स. Okay. So like one of my friend was from here only. So she suggested me that this college has a good curriculum plus studious environment also. So I came here for that. So basically, what is your educational journey from Medicaps? So I have done MBA from Medicaps in 2018 or like 17-18, and then during that duration, like I appeared for one internship also. Okay, that's very nice. So Gitika, my next question to you is, what makes you proud about your college? Everything. I would say this is one of the prominent and best college in Indore, because the other colleges mainly focuses on like activities, functions. There is no study level there. Like I have seen like my friends from other universities, they are like आज यहाँ ये function हो रहा है, आज यहाँ ये function हो रहा है, पढ़ाई का माहौल नहीं है कहीं पे भी. And today what we need is proper management, proper professionalism, and this college has that. Like from this college I have जब मैं अपने like cousins को inform करती हूँ, पूछते हैं मुझसे कौन सा college join करना है, I directly say Medicaps. If you want to study, you go to Medicaps. If you want other activities, then go to any other college, doesn't matter. Even in this area, I'm also agreed with you because I'm also alumni of this college. So totally agreed कि हाँ जो पढ़ाई वाला एक माहौल है, बिल्कुल है, वो we can say in Medicaps जो एक discipline I've seen in many areas. So I totally agree with you. The whether wants to or don't want to, they come to college because they know कि discipline है, एक management है, और वो चीज़ सिखाई भी जाती है. Definitely. Like while we were going through MBA ना, हमें बहुत ऐसा लगता था कि क्यों आना पड़ रहा है, रोज क्यों आना पड़ रहा है. But अब लगता है कि that discipline helped us right now. एक discipline ज़रूरी है लाइफ में और वो हमें यहाँ से मिला है. वो भी, और what I felt that even we can differentiate between a technical person and non-technical person because of this atmosphere, this era. What we have in Medicaps. Yeah. That we can do. Yeah. So, what is your memorable moment from your college days? Share with us. It's like there are many. Like I'm. But if you go back in your memory window, so what it can be? There is a small shops here, CKD. Oh, that's our like go-to place. Like whenever we have like free time, we used to go there. Like we have a group of 6 or 4 people, and we used to hang out a lot. Plus here teachers are very friendly. Like they never like make you feel like कि lecture चल रहा है. Lecture में भी it's like ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है. बंक करने का मन कभी नहीं करा. कभी-कभी हो जाता था, but it's like ऐसे मन नहीं करता था. तो वो memorable चीज़ teachers के साथ भी है. कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनसे मैं आज तक कनेक्ट हूँ एट अ वेरी गुड लेवल. तो वो चीज़ है. प्लस फ्रेंड्स भी यहाँ मुझे काफ़ी अच्छे मिले. लाइक मेडिकैप्स कन्वर्टेड एन इंट्रोवर्ट पर्सन इनटू एक्सट्रोवर्ट वन. मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं नहीं बात करती इसे जनरली किसी से भी. बट यहाँ से क्या नए फ्रेंड्स मिले, प्लस कैसे वर्क करना है लाइफ में आगे, दैट आई गॉट.
तो still you are in connected with the teachers and Yes. with your classmates Not also. with the classmates completely, the few of them, because सब वो busy हो गए अपनी life में. Right, बाकी right, teachers से I'm right. connected right now. Okay, that's great. So, Gitika, Yeah. now tell me, how did your college experience shape up your career path? See, from Medicabs, what I got is the management skills and the professional skills. Okay. I would say anyone can open a business, but running it with a proper management is tough. Like आप open तो कर लेते हो, Right. and 1-2 years में people close it down because proper management नहीं होता, professionalism नहीं होता. Right. But ये चीज़ हमें Medicab से मिली है. Like Okay. मुझे personally लगता है कि हर वक्त degree is not important. But degree नहीं होगी तो वो चीज़ जो आप चाह रहे हो life में, आप बिना degree के भी business कर सकते हो, no doubt. Right, right. But degree रहती है, थोड़ा सा आपको knowledge रहता है, तो आप dynamic environment में कैसे handle करना है चीज़ों को, स्टाफ कैसे आपको लाना है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेजमेंट करना है, वो चीज़ मुझे यहाँ से मिली है. बिकॉज सी आई डिड MBA in human resource only, Okay. so that was my specialization. Oh. So now that helps me a lot in my business also. Definitely. That I definitely know ki how to manage the employees and how to work in this environment, like innovation and everything. That helped me throughout this journey. Because this field especially is for companies Yeah. what they want. Yeah, But you exactly. are utilizing this, your characteristic, this True. property in your own In my business. own business, like people nowadays tell me like तुमने MBA तो कर लिया, Right. how it helped you out. हाँ, तुमने जॉब नहीं definitely. करा, कुछ भी नहीं Right. करा, but I definitely say कि एक पढ़ा लिखा और एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा फर्क होता है होता उसमें, है। and standard वगैरह सब में फर्क पड़ता है और आप काम करते तरीके में फर्क पड़ता है. बिल्कुल। Like जैसे आज हम बेकरी कैफे ओन कर रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट लगता है मैम, आप नहीं कर सकते बिना मैनेजमेंट के. एंड मैनेजमेंट मैंने मेडिकैप से सीखा है, थ्रू स्टडीज, थ्रू प्रैक्टिकलिटी, हर चीज़ से, तो वो मुझे हेल्प करती है. और वैसे भी पता है, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन जो होता है ना, वो एक आपका रिफ्लेक्शन होता True. है कि वो आप कहीं पे भी वो आपके एक बिहेवियर में झलकेगा. Exactly. जो आपने एक आपका जो एजुकेशनल जो system आपका एक पाथ रहा है, वो आपका हर एक जगह झलकता है. जी. चाहे वो आपकी वर्क स्पेस में हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में Professional हो, या चाहे वो personal. आपकी पर्सनल लाइफ में हो, वो आपका हर एक जगह पर Make you stand different from others. डेफिनेटली. That's what I have got from this university. Wow. So, Gitika, what inspired you to become an entrepreneur? Because you told us that you are an introvert person. Yeah. So, means it's very difficult to guess कि means entrepreneurship and an introvert person. It doesn't It's match a totally at all. different area. It's just like that. I have a family background, a business family background. Okay, so like okay, everyone okay, in my okay. family is from business only. So that was in my blood. Huh. I had a dream to do like a job for 2-3 years and then open a cafe. Okay. Bakery was not in my mind. Right. So cafe was there. कि I love cooking, तो मैंने सोचा कि कर लेंगे, बाद में Right, करेंगे, थोड़ा right, सा right. अपना खुद का करके. Right. But उसके बाद it's like मुझे फिर ऐसा है कि वो जॉब वाला तो फिर सिस्टम था ही नहीं घर में कभी. Okay. They were like कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, but at the end of the day you have to come to the business only. Right. So I thought to join my father's business, but then there was something like bakery came into my life out of nowhere, and it just changed my destiny. So I just thought to give it a shot, and then I tried on the business part. I just Okay. never thought ever in my life कि मुझे जॉब कर लेनी चाहिए थी. Okay. कभी-कभी लगता है at times Right, when there are right, hectic right. days. हाँ, या tough time Tough जब आता times, है, I when think it- like जैसे अभी होता है, like we Right. have 2 Mondays off only, हाँ. and every job person has weekend off. Weekend off, and like right. all of my other And friends. today's culture, if we see in job, तो 5-day culture is 5-day there. culture is yeah, there. definitely incorporate. And like that work from home also. Like I see other people roaming Yeah, around, yeah. visiting places, and here I am just sitting down at my place. Yeah. So that sometimes make me feel like काश job कर लेते. But Okay. then I feel like कि नहीं, यही सही है, जो है यही सही है, and I'm very happy with the thing I'm doing right now. बिल्कुल. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वही था जो इसमें आपने इनकॉर्पोरेट किया कि मतलब एक तो आपका एक कोई एक सडन एक स्ट्रोक आया होगा जहाँ से कि एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला आपका एक आया, साथ में कि एंटरप्रेन्योरशिप तो ठीक ही है, तो बेकरी वाला ही क्यों? Why बेकरी वाला बिजनेस करना था, that was in my mind. Okay. कैफे ओपन करना था, but Right. around 2-3 years after like my Okay, degree. okay. But bakery, it was like my mom used to do a lot, and that was the culture which was like taking place during COVID. उस वक्त क्या शॉप्स ओपन नहीं होती Right. थी, एंड बर्थडेज तो थे ही, तो पीपल यूज्ड टू लाइक कहाँ मिलेगा कुछ अच्छा, तो आई ट्राइड फ्रॉम माई होम.
Like I was appearing for MBA only, and then one of the order came from our society. And then people came to know about me through social media and other platforms. So word of mouth basically. My journey till now is completely based on word of mouth only. हमने आपके वहाँ से यहाँ सुना, ऐसा ऐसा करके people came to us कि उन्होंने recommend किया ऐसा. तो कोविड में भी यही चीज़ हुई. तो अब भी मेरा ऐसा मन में नहीं था कि मुझे बेकरी खोलनी है. बस लाइक ठीक है, जब तक अभी जॉब नहीं लग रही है तब तक हम करते हैं, कुछ तो करें एटलीस्ट, घर पे हैं तो वो हमने बेकरी का स्टार्ट किया. देन आई थॉट कि नहीं कर सकते हैं. तो मैंने फिर इसको थोड़ा सोचा कि एक ट्राई देते हैं 1 year. अगर होता है तो इट्स वेल एंड गुड, अच्छा ही है. नहीं होगा तो आई केम बैक टू माय थिंग, जॉब कर लेंगे और क्या, डिग्री तो है ही. तो फिर वो चल गया. ओके अगर मैं पूछूं आपसे कि मतलब जो आपकी स्किल्स यहाँ से आपने एज अ मैनेजमेंट पर्सन आपने जो एक्वायर की, वो आपको एज अ एंटरप्रेन्योर या फिर बेकरी जब आप अभी चला रहे हो तो वहाँ पर क्या क्या स्किल्स के थ्रू आप सोचते हो कि ये स्किल्स मुझे मिली या ये स्किल्स मुझ में है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, वो क्या चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइक सॉफ्ट स्किल्स आई हैव, like as a person I am like introvert plus I have a like मतलब गुस्सा मेरा बहुत तेज है, तो मैं वो चीज़ अब थोड़ा सा कंट्रोल करने लगी हूँ. लाइक स्टार्टिंग डेज में इट वाज लाइक कि नहीं कंट्रोल होता था, बिकॉज मेरा ह्यूमन कॉन्टैक्ट बहुत कम है. तो अब जैसे आपके पास लाइक 7 employees you have, I have right now 8 to 9 employees, तो उन्हें मैनेज करना, ना चिल्लाना एंड प्रॉपर एक मैनेजमेंट होता है. तो यहाँ से मैंने एक तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सीखा, how to manage them completely, plus time management. I like, for me punctuality is something I like go with. So वो चीज़ मैंने यहाँ से सीखी कि टाइम कैसे मैनेज करना है properly, और plus like with accounts and stuff to manage the money. Okay. That's the very most important thing. Like mostly businesses go down क्योंकि they are not able to manage the money. Whatever they are getting वो invest नहीं कर पाते हैं, right. वो बचा नहीं पाते हैं. तो वो चीज़ मैंने यहाँ से सीखी है. Okay. Plus right now I'm investing in lots of stock markets and something. तो वो चीज़ें भी मुझे पहले नहीं knowledge था from पढ़ने के बाद, and my fiancé is also from a stock market background. So he also helped me out. तो sometimes company also matters. True. तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ली है कि मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, सॉफ्ट स्किल्स हो गए. ओके. प्लस जो एक अब स्टेज फेयर होता है, मुझे कभी रहा नहीं स्टेज फेयर, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम माई लाइक स्कूलिंग से ही आई वाज लाइक इनटू एक्सटेम्परी डिबेट्स एंड एवरीथिंग. तो स्टेज फेयर नहीं था, बट ह्यूमन कॉन्टैक्ट से मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी. यहाँ क्या फ्रेंड्स मिले, टीचर्स थे, प्लस हम लोगों ने एंकरिंग वगैरह भी मैंने यहाँ से वापस स्टार्ट की थी. मैं करती थी पहले, बट फिर यहाँ फिर जब टीचर्स को लाइक पता चला, यहाँ का एक स्पेशल पॉइंट ये है कि इफ टीचर नो कि आप में ये क्वालिटी है, दे विल पुश यू टू द एक्सटेंट कि आप मतलब अपने लाइक ऑडियंस के सामने जा पाओ उस चीज़ के लिए. तो फ्यू ऑफ द टीचर्स वर देयर जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि नहीं आप ट्राई करो. 2-3 बार मैंने ट्राई भी किया, तो वो एक ह्यूमन कॉन्टैक्ट समझ में आया कि हाँ बना सकते हैं बात. राइट. और आई थिंक दिस क्वालिटीज प्रिपेयर यू फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, फॉर द फ्यूचर आई कैन से. ट्रू. Right. So, can you describe your experience with bakery operation and management? See, like experience, if I tell, I have been working for around 3-4 years right now. Okay. So I started as a home bakery. So on that time, managing your stocks and raw material was something like a difficult thing for me, because मैं जब छोटी थी, it was like 23-24 I was there on that time. तो तब इतना नॉलेज नहीं था. तो फिर यहाँ से ऐसा है कि एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आए, लाइक क्योंकि नॉलेज इस फील्ड का था ही नहीं मुझे. आई वाज लाइक आउट ऑफ नोवेयर आई केम टू दिस फील्ड, एंड फिर बहुत ऐसा लाइक कस्टमर्स रिलेशन वगैरह बनाना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये चीज़ भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत मेरा लैक कर रहा है. First year of the bakery experience was very like I can't even explain you. ये breakdowns like हर 2 दिन में I had a breakdown, small breakdown कि मुझसे नहीं हो पाएगा, I can't do. But my parents, my family, my brother, they were there कि नहीं आप करो, we are standing behind you. तो वो चीज़ मेरे लिए एक point था. फिर उसके बाद like from doing 1 year from my home only, कोविड के टाइम हमने अच्छे से करा जो भी था. उसके बाद फिर my father told कि एक शॉप ले लेता है, छोटा सा शॉप, सो दैट यू कैन थोड़ा सा एक्सप्लोर और करो. 1 साल यहाँ के लिए, 1 साल और बाहर. तो वो शॉप के लिए वो मेरे लिए बहुत बड़ा लाइक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि अभी तक मैं कॉन्फिडेंस
मेरा बिल्कुल मन नहीं था। आई एम लाइक मैं घर पे ही ठीक हूँ। आई हैव सीन सो मेनी होम बेकरीज जो घर से अच्छा कर रहे हैं, लाइक मैं घर पे ही कर लूँगी। एंड दे वर लाइक नहीं नहीं, अब तो शॉप लो, वहाँ से और स्कोप होगा। तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं। अब बीइंग एन इंट्रोवर्ट मेरे लिए कस्टमर से 1-to-1 बहुत मुश्किल था। ऐसे घर पे हम बाय कॉल करते हैं, कस्टमर से रिलेशन नहीं होता। बट आप किसी शॉप पे अगर वर्क कर रहे हो, लाइक यू हैव अ प्रॉपर लाइक एंटिटी काइंड ऑफ थिंग, तो वहाँ आपको करना पड़ेगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था वो। तो वो फिर हमने मतलब उस वक्त भी मेरे बहुत ब्रेकडाउन्स होते थे। लाइक मैं रोज़ घर पे आके रोती थी, मुझसे नहीं हो रहा है। बट दे वर लाइक नहीं करो, वी आर देयर, तुम कुछ भी बोलो हम खड़े हैं। तो वो सपोर्ट, एक पुश हमेशा मेरी लाइफ में बाय टीचर्स, बाय फैमिली, बाय माय ब्रदर, फ्रेंड्स था हमेशा से। तो वो मुझे पुश करता रहा। I can say this is the biggest fear which entrepreneur or businessman faces, the direct communication with the customers. True. ये जो रहता है, अगर ये चीज फेस कर ली तो ठीक है, आप फिर अब मूव कर जाओगे। फिर अप डाउन्स तो लगे रहेंगे डेफिनेटली। लाइक कस्टमर्स की वैरायटी बहुत है, तो वो चीज़ लगी रहती है। बट ऐसा है कि हाँ, एक बार हो गया दैट if you remember, जैसे you told us that you have many obstacles you have faced. So if I talk about a single obstacle, मतलब जस्ट मैं उसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में स्टार्ट करता है तो वो उन लोगों को भी डेफिनेटली दे हैव टू फेस दिस ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। तो आपका कोई एक ऐसा मेमोरेबल जो कि आपको अभी तक भी याद है कि अगर मैं उस समय हार जाती तो फिर मैं शायद आज इस जगह नहीं होती जहां आज मैं हूँ। तो कोई एक ऐसा ऑब्स्टिकल जो आपने फेस किया हो और उसको फेस करने के बाद में आपने उसको ओवरकम भी किया है, और कौन सी स्किल्स के साथ आपने उसे ओवरकम किया है? जब हमने लाइक ओपन किया था, लाइक द न्यू शॉप आई एम टेलिंग यू, राइट, तब आई ओपनड अराउंड February 14th. That was a Valentine Day. So I opened it, and after 2 months of that, again COVID happened. The second lockdown which happened. तो वो मेरे लिए ऐसा था कि अब I was on a rented property. तो उस वक्त ऐसा था कि अब मैं कैसे वर्क करूँगी, बिकॉज फॉर 6 months द शॉप्स आर क्लोज्ड एंड आई हैव टू वर्क फ्रॉम होम। तो वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था कि एक नया आपने कुछ खोला है एंड नाउ इट इज़ ऑफ, तो व्हाट यू कैन डू। तो फिर मैंने घर से स्टार्ट किया फिर से। दैट वाज अ टाइम कि मैंने लाइक हार नहीं मानी, वरना हो सकता था कि मैं सोचती कि नहीं अब नहीं कर सकते तो मैं छोड़ दो इस चीज़ को, बट नहीं, तब मैं आई वॉज देयर, आई वॉज स्टैंडिंग फॉर मी, माई फैमिली वॉज स्टैंडिंग फॉर मी, प्लस द नेवर एंडिंग ज़ील आई वुड से फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स। आप ज़ील ऑन रखो अपनी, लाइक सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। वंस यू आर सेटिस्फाइड, वो जो प्रोग्रेस का इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वहीं खत्म हो जाएगा। आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैंने इतना कमा लिया, आई एम नाउ सेटिस्फाइड, तो नहीं ज़रूरी है फिर बिल्कुल। और हम ये भी कह सकते हैं कि हम केवल देखते हैं सामने वाला सिनेरियो जिसमें कि हर कोई सक्सेसफुल है, लेकिन उस सक्सेस के बीच में बहुत सारे फेल्यूर्स हैं, और वही फेल्यूर्स जो है मुझे लगता है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ट्रू, लाइक आई हैव मेजर प्रॉब्लम टिल नाउ इज दैट कि मेरा स्टाफ रुकता नहीं है। ये चीज़ इस फील्ड में है, मतलब व्हेन यू कम टू फ्रॉम लाइक अ नॉर्मल बैकग्राउंड या आप जैसे कुछ भी अदर बिजनेस करते तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट व्हेन कम फ्रॉम अ होटल इंडस्ट्री, ये चीज़ हम लोगों ने बाकी लोगों से भी कंसल्ट की थी कि व्हाई दिस हैपेंस टू अस, एंड दे आर लाइक दिस हैपेंस टू एवरीवन, लाइक स्टाफ कमिंग देन गोइंग देन कमिंग देन गोइंग। तो ये चीज़ आज भी होती है, इट इज वेरी चेंजेबल। हाँ, लाइक यू कैन नॉट लाइक स्टॉप देम, आप कितना भी कुछ दे दो उनको बट दे वोंट स्टॉप। वो चीज़ है, वो एक ह्यूमन नेचर है। ये मुझे लगता है कि होटल मैनेजमेंट ही नहीं, ये शायद सभी जगहों पर होता है। Human tendency is being to move too. Like if I will be from a like a office background, definitely. If I'll get where you get opportunity, I will also move. So that's a human tendency. But for me, it was like I have only one staff for everything. Like I pointed for this person, and if that person goes away, the work will stop. Definitely. So for me was that कि मैंने कुछ भी खुद से ऐसा नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकती ये चीज़। I washed the utensils, I washed the floors, just because मुझे पता है करना मुझे है, मेरा business है तो मुझे करना ही पड़ेगा। Thank you for your suggestion, Gitika, and thank you for your time. Thank you.